everyone, welcome to Yourpedia Education. I am Shubhya, your English mentor. So in this video, we are going to discuss about the syllabus of the examination which is going to be conducted by Airport Authority of India. So see, the syllabus of English, or you can say the weightage of English in examination is of 20 marks, a good number. And you know the best part of it? Like suppose you take an analogy like you are preparing for mathematics. Even that is of 30 marks, physics, even that is of 30 marks. But you know that the syllabus of those subjects are very vast and it's not that easy to get 30 out of 30. How much you can say you can easily avail in English portion. Why? Because being from an English, you can say background, I can easily state कि अगर हम जो पिछले साल के एनालिसिस के बेस पे, if I have done the analysis of the last year 2021, तो उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं ना, तो we have confined 8 topics in our examination. और अगर हम straight away वो topics को target कर ले तो 20 out of 20 हमारे हाथ में से कहीं नहीं गए. ठीक है? तो how I'm going to jump on these topics? Just have a look on those topics. Suppose we have, see, 8 topics are there. You can have a look on it. One is your spotting error, antonyms, sentence completion, sentence rearrangement, direct and indirect speech, one word substitution, active and passive voice, and the last is reading comprehension. So what is this about? ये जो 8 टॉपिक्स है ना, इनको टारगेट करना हमारे लिए बहुत ईजी है. सभी के पास छोटे छोटे रूल्स हैं और अगर हम उन रूल्स को पढ़ लेंगे, the thing comes is you guys are all technocrats and you are from science stream or something. और इंग्लिश के साथ हमारा जो टच होता है वो बहुत टाइम से हम क्या करते हैं, उसके रूल्स हमें याद नहीं रहते हैं. So what we need to do is, I'll be helping you out in recapitulating all the rules in a very quick manner. I'll be providing you with a list of all those, ताकि आप सीधा jump in कर सके, rules पढ़े और हमारे पास straight away answers हो to be ticked. Now I'll just tell you how it is works. Like suppose what is spotting errors? Spotting, you can say the error rules. So everyone knows कि spotting error होता क्या है. एक सेंटेंस है, उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उस तरह से भी आ सकता है, या हमारे पास इनकरेक्ट करेक्ट सेंटेंस भी हो सकता है. तो यहाँ पे तो जैसे वी हैव अ वेरी फ्यू रूल्स आर देयर, बट व्हाट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद दिस, लाइक वी विल हैव अ गुड लिस्ट ऑफ रूल्स. और उस रूल्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, विल बी चेकिंग आउट, अच्छा इसमें तो नॉट ओनली है तो फटाफट हम दैन लगा देंगे, या फिर बट ऑल्सो है तो क्या लगेगा, मतलब शेल है तो येट लगेगा. तो आप जैसे ही रूल को देखोगे आप फटाफट क्या करोगे, आंसर को टिक करोगे. दैट इज ऑल्सो वर्क. नेक्स्ट वी हैव इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. So what is one word? Where you can say the study of stars is called astronomy and collection of flags is called bunting. So this is a huge list and I've given you an idea like how it will be. So how we are going to prepare is, I'm going to give you the list. पूरा list होगा, one word का होगा, discussions होगी, और more we discuss, the more we practice, the more best idea we will get about how to solve the one words also. क्योंकि one word होते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें हर चीज़ को टारगेट नहीं करना होता. समटाइम्स स्मार्ट वर्क इज बेस्ट इन इट. नेक्स्ट वी हैव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो एवरीवन नोज की वॉइस क्या होती थी, स्कूल में सबने पढ़ा है. ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है, क्या चीज़ हमें याद नहीं रहती है कि रूल्स क्या है एक्टिव के, पैसिव के, या कन्वर्जन कैसे करते हैं. भाई सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट है हमारे पास, उसको हमने टेंस में कन्वर्ट करना है, हमने उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है. तो व्हाट वाज एक्टिव, व्हाट वाज पैसिव. पैसिव में क्या आ जाएगा, जैसे आई प्लेड फुटबॉल, सिंपल सेंटेंस है, जो ये प्लेड हो जाएगा, बाय मी एट दैट लगता ही लगता है, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी. तो आई विल बी टेलिंग आउट हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड हाउ टू कन्वर्ट इट. टेंस चेंजिंग इन रिपोर्ट. नाउ वी नेक्स्ट वी हैव इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाता है, डायरेक्ट स्पीच है जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ. ठीक है, तो वॉट एवर यू आर गेटिंग एन आइडिया इन द क्लास. इनडायरेक्ट है, सपोज यू नीड टू टेल दैट थिंग कि इस वीडियो में ये बताया गया है. ठीक है, कि 20 मार्क्स हैं इंग्लिश के और इंग्लिश को क्रैक कर सकते हैं हम इजीली, बस हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और हम उसको टारगेट कर लेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. शी ऑलवेज वेयर्स अ कोट. ही सेड दैट शी ऑलवेज वोर अ कोट. तो उसको उसने कैसे बोला, दैट वुड बी इनडायरेक्ट और यू कैन से रिपोर्टेड स्पीच. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन. तो सेंटेंस कंप्लीशन में क्या आता है, एक सेंटेंस ही है, उसके पास हमारे पास आगे 4 टॉपिक्स हैं, 4 पार्ट्स हैं कि उसमें से बेस्ट हमें आंसर ढूंढना होता है. लेकिन सबसे स्मार्ट वर्क क्या होता है, या तो वो चीज़ डिफरेंस करती है टेंस के बेसिस पे, टेंस के बेसिस पे आपको उठाना होता है, इधर कंटेंट के बेसिस पे. और सबसे बड़ी बच्चे गलती क्या करते हैं, कंटेंट के बेसिस पे.
तो here we will be solving a lot of questions. ये तो they are hardly a number and we'll be practicing a lot of questions ताकि आपके sentence completion and all that goes really well. Next we have, you can say, jumbled sentences. Rearrangement is that. तो rearrangement को करने का एक, you can say, एक there is a trick. What you need to do is, सबसे पहले you have a sentence of rearrangement. You need to focus on a noun. अच्छा भाई noun कहाँ है? वही noun है हमारे पास. फिर हमारे पास verb कहाँ है? तो हमने बोला have हमारे पास verb है. फिर हम गए कि हमारे पास object क्या है? तो a holiday this Friday. हमें इस तरह से we have a holiday this Friday. So इस तरह से when we get an idea, noun, verb जिससे हमारा sentence शुरू होगा, उसके basis पे हम अपने sentence को jumble से, you can say, rearrange कर पाएंगे. Then we have the voice, active voice, passive voice. We all have done this. And last but not the least, we have our antonyms and reading comprehensions. So antonyms जो आते हैं ना, antonyms लास्ट ईयर आए हैं पेपर में, हम synonyms भी प्रैक्टिस करेंगे कि we should not leave any, you can say, scope to miss a single number. तो antonyms भी they have a range of collection and all, कि किस तरह से हमें antonyms आ सकते हैं. जैसे abandon है, ठीक है, what does it mean? Abandon होता है किसी को, you can say the person leaves you, and the other is opposite is to keep that person. Abbreviate क्या होता है? Short कर देना, और short का उसका difference क्या आ जाएगा दूसरा? That would be इंक्रीज करना. तो इस तरह से हमारे पास एंटोनिम्स भी हैं. नेक्स्ट वी हैव द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नीड्स द स्मार्टेस्ट वर्क ऑफ ऑल. क्यों रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में टाइम लगता है? कई बच्चों का, हर बच्चे का करने का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तरीका डिफरेंट होता है. कई सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और सीधा क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन को क्वेश्चंस पढ़े, कॉम्प्रीहेंशन पे आए, ढूंढा, that's it. They find it very easy. Some are there who make, you can say, take 1 minute, exactly they count at 1 minute for their reading. जितनी भी उनको समझ आए कि वो टॉपिक था किस बेस पे, फिर उन्होंने वापस वहाँ से एक आइडिया ले लिया, फिर वो क्वेश्चंस पे जंप करें and then do the same thing. So there are very minor tricks to do the reading comprehension, and the more we practice, the more perfect we become. तो I would advise, जैसे अब हमारे पास इंग्लिश में स्कोर करना सबसे ईजी है, तो वी शुड बी टारगेटिंग व्हेन इट इज अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना, तो हमें क्या करना चाहिए, जो टॉपिक हमें अच्छे से आता है वो तो हम करते ही करते हैं, साथ में जिसकी प्रैक्टिस चाहिए उसको थोड़ा थोड़ा टाइम हर दिन देना चाहिए. ठीक है, तो हाउ इट गोज इज, नाउ वी हैव 8 सब टॉपिक्स एंड ऑल दैट, 8 पोर्शंस इन दिस एग्जामिनेशन, एंड आई वुड बी टेकिंग अ वीडियो ऑन एवरी टॉपिक. हर दिन हर एक टॉपिक पे वीडियो आया करेगी, उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, प्लस यू विल बी स्किल्ड इनफ कि जैसे ही वहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, रूल याद आ गया हमें और हमने क्या किया, टिक, and we get the easy solution to solve it. So this was my idea ki how you need to do. You can have a look again on the topics which are going to come in your exam. Like these are the topics which have been framed through the, you can say, analysis of 2021 this Airport Authority examination paper, and then we will be discussing, we will have a good discussion on it, on each topic of it. Okay, so I hope you like the video, and you will stay tuned with me so that we can have a different video on everything. And if you have any kind of query and all that, so we can have a good discussion on it too also. Thank you, take care.